Hello, students. Hope you are doing some productive work along with your learning in this worldwide lockdown. Well, this is indeed a challenging time for all of us, and we need to be stayed at our home. And this is the only way, students, through which we can help our society and nation. So, today we will study chapter Bholi from your Footprints Without Feet book. It's written by K.A. Abbas, and let me give you some overview of the story. Students, it's a story of a girl who rises against social injustice done to her. As you can see, students, on the screen, I have displayed highlights of the chapter for the better understanding. Now let's begin the chapter. There was a girl whose name was Sulekha and people called her Bholi because some part of her brain got damaged when she fell from cot during her childhood. She also had a pock marks on her face when she suffered from smallpox at the age of 2. तो एक लड़की जिसका नाम सुलेखा था उसे सब भोली कहते थे और बचपन में क्योंकि वो बेड से नीचे गिर गई थी तो इस वजह से उसके दिमाग में ऐसी चोट आ गई थी जिसकी वजह से उसे समझ नहीं थी, चीज़ों को समझने की उसके अंदर क्षमता नहीं रह गई थी। और इसके साथ साथ ही जब वो 2 साल की थी सिर्फ उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था। स्मॉल पॉक्स की वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स तो ठीक हो गया लेकिन उसके फेस में पॉक मार्क्स आ गए। So students, here what is the meaning of cot and pock marks in the text? Cot means bed and pock marks means scars left on the face due to some disease. कोई अगर बीमारी हो जाए उसके बाद अगर चेहरे पर या शरीर पर कहीं पर भी कुछ निशान रह जाए, कुछ दाग धब्बे से रह जाए तो उसे पॉक मार्क्स कहते हैं। और यहाँ पर पॉक मार्क्स भोली को स्मॉल पॉक्स की वजह से हुए थे। Bholi learned to talk at 5, but she used to stammer while speaking and became a laughing stock for everyone. Her father's name was Ramlal and he was a Lambardar. He had 3 sons and 4 daughters, and Bholi was the youngest among all. कम समझ की वजह से भोली ने बोलना भी बहुत लेट सीखा जब वो 5 साल की थी और जब भी वो बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी, बोलते समय लड़खड़ाती थी उसकी आवाज़। और उसके फादर का नाम रामलाल था और वो नंबरदार थे। आप देखेंगे टेक्स्ट पे नंबरदार नंबरदार बार बार मेंशन हो रखा होगा। इट मीन्स लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार होते हैं गाँव में, ठीक है, उन्हें नंबरदार भी बोलते हैं। तो उनके 3 बेटे और 4 बेटियाँ थी जिसमें जो भोली थी सबसे ज़्यादा छोटी थी। One day Tehsildar visited to village and told Ramlal Bholi's father, that he should send her daughter to school. But student, as you know, in ancient time it was not in practice to send girls, especially girls, in the school. They thought no boy would marry them, and if girl would become an educated girl, so it would be impossible for her to get married easily. सो मैरिज वॉज द मेन एजेंडा। पहले क्या होता था कि शादी को सबसे बड़ा एक मुद्दा माना जाता था और स्पेशली यही माना जाता था कि अगर लड़की को तुमने पढ़ा दिया तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी लड़का इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा वरिड रहते थे रामलाल और उसकी वाइफ की। वो भोली को ना पढ़ाना चाहते थे और ना ही वो कहीं भी भेजना चाहते थे। लेकिन जब तहसीलदार आया तो वो रिक्वेस्ट करता है रामलाल को कि वो अपनी डॉटर भोली को स्कूल भेजे। Then what happened? Both Ramlal and his wife was not in favor to send Bholi to school, but they also thought due to her bad looks, already no would be interested in marrying to Bholi. Just for the sake of image in the society, they finally decided to send Bholi in the school. अब हस्बैंड वाइफ ने ये सोचा, भोली के पेरेंट्स ने, कि ऑलरेडी जो हमारी भोली है वो इतनी अगली है, उसमें कम समझ है, तो वैसे भी अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो उससे वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम तहसीलदार के कहने पर इसे स्कूल भेज देते तो एटलीस्ट सोसाइटी में हमारी एक इमेज तो बनी रहेगी। सो इस कारण से भोली को स्कूल भेजा जाता है। एज भोली हैड बीन नेवर टू आउटसाइड वर्ल्ड, सो इनिशियली she afraid, but the moment her mother dressed her nicely, oiled her hair, so Bholi thought it's going to be good wherever she is going. So now in school, she met a teacher who was very kind and polite, and she encouraged Bholi to speak up in front of everyone.
Although her classmate laughed at her, but gradually things became normal. And students, her teacher was the only person in her life who motivated to get out of her fear. So, students, you will find in the chapter that no one except her teacher helped Bholi in building her confidence. सो अब भोली को स्कूल भेजा जाता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि किस कारण की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से उसके पेरेंट्स अग्री हो जाते हैं कि हम भोली को फाइनली स्कूल भेजेंगे। अब जब वो स्कूल जाती है, क्योंकि वो स्टामर करती थी, तो जैसे ही वो बोलती है वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स उसके हंसने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी टीचर बहुत अच्छी थी, वो उसे इंकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि तुम अच्छा कर सकती हो। और पूरे चैप्टर में आप ये देखेंगे कि भोली की जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उसके कोई भी नेबर्स है, कोई भी कभी भी भोली को एनकरेज नहीं करेंगे, कभी कोई पॉजिटिविटी नहीं देंगे अपनी तरफ से। सिर्फ एक टीचर ही है उसकी लाइफ में जो उसे हर जगह मोटिवेट करेगी। और इसी वजह से भोली भोली जो होती है वो, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है यहाँ से। Now years passed and Bholi became a grown up girl and her village upgraded into a town. One day, Bholi's parents received an offer of marriage for Bholi from a widower who was lame but rich. He was also not asking for any dowry, so Bholi's parents thought it would be better for them that her daughter at least got a marriage proposal, and they fixed up her marriage without letting them know about her lack of sense and pockmarks. तो क्या होता है, दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, भोली एक बड़ी लड़की बन चुकी थी। नाउ शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल। और जो विलेज है, जो गांव था, वो अब नगर में बदल चुका होता है। तो भोली के पेरेंट्स के पास एक ऑफ़र आता है, मैरिज प्रपोज़ल आता है। लेकिन वो मैरिज प्रपोज़ल किसका होता है? विडोवर का होता है। विडोवर उसे बोलते हैं जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, उसका मैरिज प्रपोज़ल आता है। और वो लेम भी होता है, लंगड़ा भी होता है, बट क्योंकि वो रिच होता है, तो अमीर होने की वजह से जो भोली के पेरेंट्स ने तो ये सोच रखा था कि भोली की तो कभी शादी नहीं हो सकती, उसे कोई प्रपोज़ल नहीं आ सकता। लेकिन ये वाला प्रपोज़ल देख के वो थोड़ा ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही एक तरह से गोल्डन चांस है कि वो अपनी बेटी को पूरे जीवन भर घर तो बिठाएंगे ही नहीं। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हम इसी की, अपनी डॉटर की शादी इससे करा लेते हैं। और जबकि देखा जाए, जो मैरिज प्रपोज़ल आया है, तो जो आदमी है वो भोली के फादर की एज का है, बट दे स्टिल फिक्स्ड अ मैरिज विद दैट पर्सन। भोली के पेरेंट्स दूल्हे को ये भी नहीं बताते हैं कि उसके फेस पे पॉक मार्क्स है, उसका लैक ऑफ सेंस है, जो कि उनके अकॉर्डिंग वो सोचा करते थे। इस चीज़ों के बारे में वो दूल्हे के या उसके घर वालों को कुछ नहीं बताते, ये सारी चीज़ें वो हाइड कर लेते हैं। सो जिस विडोअर से भोली की शादी फिक्स हुई है, उसका नाम बिशंबर नाथ है। सो ऑन द डे ऑफ वेडिंग, bridegroom arrived and he accidentally saw Bholi's pockmarks and said no to marriage. Now Bholi's parents pleaded him, and Ramlal begged for mercy, even placed his turban in Bishambar's feet, but he did not agree. He said, in one condition, I would marry to your daughter. If you give me 5,000 rupees as dowry, so in that condition I would marry her. अब बिशंबर नाथ जो होता है वो शादी के दिन अचानक से भोली के फेस में पॉक मार्क्स देख लेता है, और उसके बाद वो शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से जो भोली के पेरेंट्स होते हैं वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज़ कर लीजिए शादी। तो वो कहते हैं एक कंडीशन में मैं शादी करूँगा, अगर आप मुझे 5,000 रुपये डाउरी में देंगे। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी है, तो उस समय जो 5,000 रुपीज़ थी वो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता था। तो वो 5,000 रुपीज़ की डिमांड करता है, और एक पूरा सीन क्रिएट हो जाता है कि रामलाल जो है, भोली के फादर जो हैं, उन्होंने अपनी टर्बन भी उसके पैरों के नीचे रख चुके होते हैं कि प्लीज़ हमारी इज़्ज़त आपके हाथों में। जैसे कि आप मूवीज़ में देखते ही हैं, पुरानी मूवीज़ में इस तरह के सीन काफ़ी होते थे। तो इस तरह का बिल्कुल एक ड्रामेटिक सीन वहाँ पर क्रिएट हो चुका होता है। Now Bholi was listening, and she stood up and could not bear all this thing. She refused to marry to such greedy person. People called her shameless. The wedding party returned. अब क्या होता है, ये सब तो भोली दूर से सुन ही रही होती है, और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो खड़ी होती है और वो खुद ही कह देती है कि मैं इस लालची बुढ़े से शादी तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी।
ये कहते ही बारात वापस चली जाती है और जो वहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रखे होते हैं वो भोली को कहने लग जाते हैं कितनी शेमलेस गर्ल है, कितनी बेशरम लड़की है, इस तरह से कैसे बोल सकती है, दुल्हन है। और इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए भोली की टीचर भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि अभी नहीं जाती है, वो वहीं पर ही होती है। Now her father was surrounded in grief and said to Bholi that no one would marry you, and what you have done, what would you do in the future? Then Bholi replied she would take care of her parents and would teach in the same school where she used to go. So her teacher was quietly watching this and felt proud of her. So here students chapter ends, and what is the moral of the story? That family support is very needed to every child. Nobody is perfect. We all have our own problems. We have to stand for ourselves because nobody is going to help you unless you are not helping yourself. And beauty is not everything. रियल ब्यूटी लाइज इनसाइड आर सोल। तो शिक्षा हमें यही मिलती है स्टोरी से, इस चैप्टर से, कि हमें हम सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं, हम सब के अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, चाहे वो फिज़िकल वीकनेस है, मेंटल वीकनेस है, हमें वो उसे खुद ही डील करना पड़ेगा अपने लेवल पर। हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए चैप्टर में किस तरह से फैमिली का तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, वो तो एक टीचर के सपोर्ट की वजह से भोली यहाँ पर आई। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी ना खड़ा हो, लेकिन हमें अपने लिए खुद खड़ा होना आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।